امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہیں. میرے خیال میں غزہ میں آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی. امریکی صدر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہیں. میرے خیال میں غزہ میں آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی. Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and we're the ones that are. It's too bad. Other countries aren't helping out. Nobody's helping out. We're doing that because I think we have to on a humanitarian basis. ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے بالکل گریز نہیں کروں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر مستقبل میں انٹیلیجنس رپورٹس میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افسودگی سے متعلق تشویش ناک نتائج آئے تو کیا وہ ایران پر بمباری کرنے پر غور کریں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے اس سطح پر یورینیم افسودہ کی جس پر امریکہ کو تشویش ہوئی تو وہ بمباری پر بالکل غور کریں گے. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار یا کسی دیگر قابل احترام ادارے کے اہلکار ایران کی ان نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ کریں جن پر پچھلے ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اس بیان پر جلد رد عمل دیں گے جس میں آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ قطر میں امریکی فوج کے اڈے پر حملہ کر کے ایران نے امریکہ کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear and they never got it together. Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon. If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Sure, without question, absolutely. وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا بھی ایک بار پھر کریڈٹ لے لیا. کہا کہ جنگ بندی پر دونوں ملکوں کی قیادت کی تعریف کرتا ہوں. بولے انہیں بھارت اور پاکستان کا معاملہ حل کرنے پر بہت خوشی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے پاس اعلیٰ سطح کے ایٹمی ہتھیار ہیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا ہے. But this is a tremendous breakthrough. In a few short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And we said that also with, if you take a look at Pakistan and India, it was great. They have two great leaders, and they were able to stop. They were in the midst of a big fight, I guess everybody saw, and it was going to get very bad. And they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. In the months and years ahead, my administration will continue to work closely with all of the parties in this deal and ensure the agreements are fully taken care of. امریکہ نے گزشتہ 20 سال میں افغانستان سے لے کر عراق تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنگیں شروع کیں. کہیں دہشت گردی کے نام پر جنگ کا آغاز کیا تو کہیں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ڈھونڈنے کا بہانہ بنایا. ان جنگوں میں جہاں اربوں ڈالر خرچ ہوئے وہیں لاکھوں عام شہری بھی اپنی جانوں سے گئے. ان جنگوں کا براہ راست کتنے افراد نشانہ بنے اور کتنے ارب ڈالر خرچ ہوئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 9/11 کے بعد امریکہ مشرق وسطی میں عراق سے لے کر افغانستان اور اب ایران تک کسی نہ کسی شکل میں جنگوں میں مصروف ہے. 20 سال سے زائد کے عرصے میں امریکہ نے ان جنگوں پر اب تک 58 کھرب ڈالرز خرچ کیے جبکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع اس کے علاوہ ہے. امریکی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق 2001 کے بعد سے ان امریکی جنگوں میں براہ راست 9,40,000 افراد کی جانیں گئیں جن میں 30,000 امریکی فوجی، کانٹریکٹرز اور اتحادیوں کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں. براہ راست ان ہلاکتوں میں بیماریوں، خوراک اور ادویات کی کمی کے باعث بالواسطہ اموات کو شامل کر لیا جائے تو یہ 45 سے 47 لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں.
हलाकतों के लिहाज से इराक में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 3,15,000 अफराद ने जाने गंवाई, जिनमें 2 लाख आम शहरी भी शामिल हैं, जो इस अरसे में अमेरिका के किसी भी जंगी इलाके में शहरी हलाकतों के लिहाज से सबसे ज्यादा है। अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग 20 साल जारी रही। इस जंग में 70,000 आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जाने गयी। अफगान जंग के मनफी असरात पाकिस्तान पर भी पड़े और पाकिस्तान में 66,000 जाने गयी। सिर्फ अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका की जंग से 5,58,000 अफराद बराह रास्त निशाना बने। शाम की खाना जंगी में अमेरिका 2014 में दाखिल हुआ और 2021 तक इस जंग में तकरीबन 1,39,000 आम शहरियों समेत 2,69,000 जाने गईं, जबकि यमन में 1,12,000 अफराद ने जाने गंवाई। सिंदास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। सालिसी अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई नहीं रोक सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। अफसोसनाक खबर, दरियाए सवात के सैलाबी रैले में जाँ बहक 7 अफराद की मैयतें सियालकोट पहुँचा दी गई हैं। मैयतें पहुँचने पर इलाके में कोहराम मच गया। जुमे के रोज़ दरियाए सवात के सैलाबी रैले में 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 4 को बचा लिया गया। 4 अफराद की तलाश का काम जारी है। कल सुबह नाश्ते के बाद सयाहों ने तस्वीर लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए टीले पर चढ़ गए, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज था कि कोई उसके सामने ठहर नहीं सका। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। वाक़े के खिलाफ सवात में वुकला आज अदालतों का बाइकआउट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानिया सवात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी। हुकूमती कोताहियों का जायजा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में जुमेरात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मॉनसून की तेज़ हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। आज भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मुतदिल और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, मजीद बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सईद। आज बिल्कुल कराची में आज भी सुरमई बादलों का राज है और 2 रोज़ कबल तकरीबन 300 दिन के लगभग के बाद कराची शहर में बारिश हुई थी जुमरात के रोज़, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में आज और कल यानी कि इतवार के दिन भी बारिश मुतवक्के है। आज कराची शहर में कहीं गरज के साथ शदीद बारिश और कहीं जो है वो बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और ये सिलसिला इतवार के दिन तक जारी रहेगा। इस वक्त कराची शहर में तकरीबन 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 90% हवा में नमी का तनासुब है और शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 से 33 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त कराची शहर में काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशन गोई की है कि सुबह के औकात में तकरीबन 11 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, मटियारी में भी मानसून बारिशों का आगाज हो गया। सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। बिजली की तवील लोड शेडिंग भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, जिला मटियारी में भी मानसून बारिशों का आगाज हो गया। गुज़श्ता रोज हाला, न्यू सईदाबाद, बिरशा और दे इलाकों में
मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए थे। न्यू सईदाबाद शहर में पानी इस वक्त भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वो मेन सड़क है जहाँ पर पानी है, जबकि इसके अलावा जो है बारिश के बाद नुकसानात भी हुए हैं। इंतज़ामिया पानी निकास करने में लगी हुई है, मगर बारिश से कबल जो है इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर के जो नदी नाले उनकी सफाई नहीं कराई गई। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये सड़कों पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जिसके पास जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ से पड़ने वाली बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुसलसल बंद है। हाला न्यू सईदाबाद बिरशाह में गुज़श्ता रोज़ से अब तक बिजली फराहमी मुअत्तल है, जिसके बाद सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में 39 मिलीमीटर बारिश के बायस शहर लतीफ़ाबाद के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर होने से निकासी आब का निज़ाम भी बैठ गया है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में 39 मिलीमीटर बारिश होने के बाद लतीफ़ाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदर चौक, लियाकत कॉलोनी, गाड़ी खाता, काज़ा अब्दुल क़य्यूम रोड, स्टेशन रोड, मक्की शाह, लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा है। उधर हैस्को का निज़ाम मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी बारिश में बह गया। 52 फीडर्स बंद होने के बायस निकासी आब का निज़ाम भी जवाब दे गया। 24 घंटे हो गए, बेशतर इलाकों में लाइट नहीं है, आवाम परेशान है, उससे पीने का पानी भी मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई गवर्नमेंट का बंदा आया नहीं है, कोई मतलब स्वीपर नहीं आया और वो अभी तक कोई सफाई नहीं हुई। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, लाइट का निज़ाम दरहम बरहम है। आवाम बड़ी परेशान है। इस शदीद सूरत हाल से निमटने के लिए मैं हैस्को वालों से कहूँगा कि वो अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध के सूबाई मशीर अब्दुल जब्बार का कहना है कि बिजली ना होने के बायस नशेबी इलाकों से पानी निकालने में दुश्वारी का सामना है। जहाँ पे नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी कुछ मौजूद है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वाबडा के जो जितने भी फीडर थे यहाँ पे वर्किंग हालत में वो सारे के सारे बंद पड़े हुए थे, तो बगैर लाइट के जो है वो पानी निकालने में दुश्वारी हो रही है। बारिश के बायस मुतासर होने वाला बिजली का निज़ाम ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सका। सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही रिपोर्टर अली नईम और कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मानसून शुरू होने के बावजूद फैसलाबाद के रहायशी इलाके से गुजरने वाले गंदे नालों की सफाई ना होने की शिकायत सामने आ रही है। तफसीलात के लिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के ऐसे इलाके जहां से गंदे पानी के नाले गुजरते हैं, वहां मकीन बारिशों के नतीजे में गंदा पानी घरों में दाखिल होने के खौफ में मुब्तला हैं। पहले आउंदे सीगे वसा वाले सफाई करते थे, 2 साल हो गए मुसलसल बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। इतनी गंदगी का साफ नहीं। क्या आगे बारिशों का मौसम आ रहा है, ठीक है, नाले से पानी बाहर आएगा, ठीक है, ये घरों में जाता है पानी, जिसकी वजह से घरों के ये जो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है हो रहा है, ठीक है, दीवारें सारी ख़राब हो रही हैं। जगह जगह कूड़े करकट से भरे गंदे नालों के मनाजर वासा की कारकर्दगी बयान कर रहे हैं, जबकि वासा हुकाम नालों की मुकम्मल सफाई के दावेदार हैं। 48 किलोमीटर की जो चैनल्स की डिसिल्टिंग है उसके हमने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं। वासा फैसलाबाद के मानसून की तैयारियों के बुलंदोबांग दावों के बावजूद गंदे नालों के गिर्द रहायशी इलाकों के मकीनों को डर है कि नालों की सफाई ना होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ारत दाखिला ने आशुरा मुहर्रम के लिए चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला किया है। फ़ौज की तैनाती के लिए चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी। वज़ीर दाखिला ने आशूरा मुहर्रम के लिए चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला किया है। फ़ौज की तैनाती के लिए चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ़ौज मुहर्रमुल हराम के अशरे में सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 7 जजेस की अक्सरियत के साथ नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का जजेस का फैसला कल अदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 10 रुकनी आईनी बेंच ने 17 समातों के बाद फैसला सुनाया।
फैसला 7 जजेस की अक्सरियत से दिया गया है। 4 सफहात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले के मुताबिक नजर सानी बेंच 13 जजेस पर मुश्तमिल था। 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहले दिन ही इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 7 जजेस की अक्सरियत ने नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर की। इनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशिस्तों पर नजर सानी का फैसला दिया। उनका 39 नशिस्तों पर पुराना हुक्म बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। कौमी और सूबाई असेंबली की कुल 77 मखसूस नशिस्तें हैं जो अब हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी। कौमी असेंबली की 22, सूबाई असेंबलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली की 19 खवातीन, 3 अक़लियती नशिस्तें मिल गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें शामिल हैं। पंजाब असेंबली में खवातीन की 24, अक़लियतों की 3 नशिस्तें हैं। सिंध असेंबली में खवातीन की 2 जबकि 1 अक़लियती नशिस्त हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन और नाइंसाफी करार दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आइन की गलत तशरीह हुई है। वक्त बताएगा कि ये फैसला गलत है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। इस किस्म के फैसले का आना तो कभी शायद कानून की किताबों में नहीं सुना था। पहली बात तो यह है कि 13 जजेस के मुकाबले में 8 जज का फैसला, जो 13 मेंबर का बेंच था उसमें 8 जजेस ने हमारे हक में फैसला कर दिया था। 2 मरतबा उन जजेस साहिबान ने यूनानिमसली एक्सप्लेनेशन दे करके ये कहा था कि यही उनका राइट है, अफर्म किया था। और इलेक्शन कमीशन के जो रिव्यू के साथ एप्लीकेशन आई थी उन पर भी उन्होंने राय दे दी थी कि यही प्रिवेल करेगा। और हुकूमत ने ये सीटें लेने के लिए जो कानून साजी भी की है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी और इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। लेकिन ये जो राइट्स हमसे ली गई है ये नाइंसाफी है, ये आइन की गलत इंटरप्रिटेशन आज हुआ है। वज़ीर आज़म ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले का खैर मकदम किया है। कहा कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई है। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ और अवैस मुनीर पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान 1 ने मोहम्मद सज्जाद और शाहिद आफ्ताब की टीम पाकिस्तान 2 को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो में जारी एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। पहले फ्रेम में ओवैस मुनीर ने मोहम्मद सज्जाद को 53 के मुकाबले में 74 पॉइंट से शिकस्त दी और पाकिस्तान 1 को बरतरी दिला दी। दूसरे फ्रेम में शाहिद आफ्ताब ने मोहम्मद आसिफ को 27 के मुकाबले में 66 स्कोर से हराकर मुकाबला बराबर कर दिया। तीसरे फ्रेम में डबल्स में मुकाबला हुआ जिसमें मोहम्मद आसिफ और ओवैस मुनीर की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। चौथा फ्रेम फैसला कुन साबित हुआ जिसमें ओवैस मुनीर ने मोहम्मद सज्जाद को सिर्फ 1 पॉइंट स्कोर करने दिया और 1 के मुकाबले में 71 स्कोर से कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान 1 को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान 1 का मुकाबला मलेशिया से होगा। PSL की फातेह टीम लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स का बीड़ा उठाया है। इस हवाले से ट्रायल का आगाज़ बलोचिस्तान से किया है जो 30 जून तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान की मशीर खेल मीना मजीद बलोच ने टैलेंट हंट ट्रायल्स के कोयटा में इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इन ट्रायल से एक अच्छा मुस्बत पैगाम जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स लाहौर कलंदर्स हायर एजुकेशन कमीशन और महकमे खेल बलूचिस्तान के इश्तराक से IT यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जारी हैं। इन ट्रायल्स में बलूचिस्तान भर से नौजवान खिलाड़ी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि हमने वज़ीर आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स का बेड़ा उठा लिया है और इसका आगाज़ बलूचिस्तान से किया गया। इन ट्रायल्स के ज़रिए सूबे की 5 टीमें तश्कील दी जाएंगी जिनमें से एक बेहतरीन टीम का इंतखाब किया जाएगा। लाहौर कलंदर के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती थी कि हम पूरे पाकिस्तान के स्पेशली बलूचिस्तान के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट का शौक़ उस तरह नहीं है। लेकिन जब से मैं एंटर हूँ मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं और वो बहुत अपने हीरोज़ को अपने दरमियान देख के बहुत खुश भी हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये बेड़ा हमने उठाया। मुशीर खेल बलूचिस्तान मीना मजीद ने कोयटा में क्रिकेट ट्रायल्स के इनेकाद को सराहा। इनका कहना था कि ट्रायल से ऐसे नाम सामने आएंगे जो मुल्क में सूबे का नाम रोशन कर सकें।
بلوچستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کی اس طرح کی پروگرامز کو میں بہت خوشائن سمجھتی ہوں. پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جس کا انیشیٹ اور اسٹارٹ بلوچستان سے لیا گیا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک پازیٹیو پیغام بھیجتی ہے پوری قوم کو کہ بلوچستان کی کتنی اہمیت ہے اور بلوچستان کو کتنا امپورٹنس دیا جا رہا ہے. ٹیلنٹ ہنٹ ٹرائلز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ قومی اسٹار بننے کا موقع فراہم کرنے پر وزیر اعظم اور لاہور قلندرز کے شکر گزار ہیں. ہم لاہور قلندر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کو موقع دیا ہے اور امید ہے کہ ہم اس ٹرائل میں سلیکٹ ہو جائے اور اپنے PSL میں لاہور قلندر کا نمائندگی کریں. یہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے یہ بھی ایک اچھا زبردست پروگرام ہے، لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے اور لاہور قلندرز کے ہم بڑے بہت مشکور ہیں جنہوں نے یہاں پہ ٹرائلز کنڈکٹ کیے. ایک واحد ٹیم ہے لاہور قلندرز جو ٹیلنٹ کو نکالتی ہے پورے پاکستان سے. کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ ٹرائلز لاہور قلندر کے کوچ ریاض آفریدی کی زیر نگرانی 30 جون تک جاری رہیں گے. کیمرمین احسن رسول کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ. چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں اور جنرل سیکرٹری چودھری طاہر نے وزیر اعظم کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر PIO مبشر حسن سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں کیبل انڈسٹری کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی، جس میں چیئرمین خالد ارائیں نے PIO کو کیبل انڈسٹری کی بہتری کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کی ہیں. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں کیبل انڈسٹری کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا. PIO مبشر حسن نے کیبل انڈسٹری کی مشکلات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی. مبشر حسن کا کہنا تھا کہ میڈیا انڈسٹری کی ترقی میں کیبل آپریٹرز کا اہم ترین کردار ہے. ملاقات میں چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں نے PIO سے درخواست کی کہ PID کی جانب سے کیبل کے اشتہارات کی پالیسی بنائی جائے جس سے کیبل انڈسٹری بحال ہوگی اور کیبل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. ہسپانوی سینٹ کے امور خارجہ کمیشن کے صدر ہوزے اگناشیو نے کہا ہے کہ پاکستان اور اسپین کے دو طرفہ تعلقات مضبوط کیے جائیں گے. انہوں نے تنازعات کے پرامن حل پر زور بھی دیا اور کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات عالمی چیلنجز سے نمٹنے کا لازم طریقہ ہیں. اسپین میں پاکستان کے سفیر ظہور احمد نے ہسپانوی سینٹ کے امور خارجہ سے ملاقات کی ہے. ہسپانوی سینٹ میں ہوئی اس ملاقات میں 6 دیگر سینیٹرز اور کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے. سفیر نے پارلیمانی امور سمیت مختلف شعبوں میں پاک اسپین تعلقات اور تعاون کو وسعت دینے سے متعلق امور پر گفتگو کی. سفیر پاکستان نے کہا کہ عالمی تنازعات میں اسپین متوازن اور تعمیری خارجہ پالیسی اپناتا ہے جو قابل ستائش ہے. ظہور احمد نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ساتھ ہی کشیدگی کم کرنے اور تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے کی وکالت کرتا ہے. کیلیفورنیا کی جھیل تاہو میں 2 روز پہلے کشتی الٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حادثہ بھی سبات واقعے سے ملتا جلتا ہے کیونکہ جھیل میں پانی ایک دم بڑھ گیا اور جھیل میں لہریں 10 فٹ بلندی تک چلی گئیں. اسی دوران ان طوفانی بارش اور اولے بھی برسے اور کشتی پر سوار افراد سالگرہ منانے کے لیے گئے تھے. اسی دوران طوفان کے باعث کشتی الٹ گئی جس کے باعث 8 افراد جان سے چلے گئے. شندور کی بلند پہاڑیوں کے درمیان جہاں سردی کی شدت اور تنہائی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، وہیں ایک شخص محمد علی 29 سالوں سے اپنے چھوٹے سے ہوٹل کے ذریعے نہ صرف اپنے گھر کا چولہا گرم رکھے ہوئے ہے بلکہ آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ایک امید اور توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. شندور سے عزیر خلیل کی رپورٹ. شندور کے بلند و بالا پہاڑوں کے دامن اور قدرت کے حسین اور دل فریب نظاروں میں چھوٹا سا ہوٹل چلانے والا یہ محمد علی ہے. موسم گرما میں جب شندور میلہ سجتا ہے تو سیاحوں کی آمد و رفت سے اس کے ہوٹل کی رونقیں بحال ہو جاتی ہے. تگڑی کا ایشو ہوتا ہے، ادھر سامان کا ہوتا ہے. ہم خود نیچے جاتا ہوں، برف میں 4 فٹ 6 فٹ برف بھی ہو گیا، ہم جاتا ہوں. رات کو باہر نکل کے ہم کسی لوگوں کا آواز سنتا ہوں، کوئی برف میں پھنسا ہے کیا ہے، کوئی کسی جگہ میں روشنی آتے، ہم چائے پہنچاتا ہوں. سردیوں میں جب خوبصورت پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں تو محمد علی تنہائی، سخت موسم اور محدود وسائل کے باوجود میدانی علاقوں کی جانب ہجرت کرنے کی بجائے سیاحوں کے لیے اپنے ہوٹل کا در کھلا رکھتا ہے. سردیوں میں ادھر 5 فٹ 4 فٹ اس طرح برف پڑ جاتی ہے تو یہ لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے سر. محمد علی دلکش نظاروں سے مزین وادی چترال کی کئی کہانیاں اپنے دل میں سموئے بیٹھا ہے اور خود ایک ایسی کہانی سے منسلک ہے جو حوصلے، سادگی اور فطرت سے جڑے رشتے کی عکاس ہے. ساتھی رپورٹر دانیال عزیز کے ساتھ عزیر خلیل، جیو نیوز، شندور.